ملتان میں کہنے کو تو قلعے ہیں، ایک قلعہ نو کہلاتا ہے جس کا صرف ریلوے سٹیشن ہے جو ملتان سے جنوب میں ہے اور اس کا نام بھی ریلوے ٹائم ٹیبل میں موجود ہے۔ دوسرا قلعہ کوہنا ہے، اس کا کسی ٹائم ٹیبل میں اندراج نہیں ہے۔ اگر ملتان کے ریلوے سٹیشن ایئرپورٹ پر آپ اتری اور کسی سواری میں بیٹھ کر کہیں کہ آپ کو قلعہ پر جانا ہے تو وہ آپ کو قلعہ کوہنا پر لے آئے گا، مگر ریل گاڑی کے علاوہ کوئی سواری اتنی آسانی آپ کو قلعہ نو پر نہیں لا سکے گی۔ قلعہ کوہنا جو جگہ کہلاتی ہے وہاں قرنوں پہلے تو ضرور قلعہ ہوگا، مگر اب تو خشت و خاک کے ایک تودے کو جو 60-70 فٹ کی بلندی پر واقع ہے قلعہ کوہنا کہتے ہیں۔ یہ قلعہ مذہبی، روحانی، ثقافتی اور تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس قلعہ کی حالت ایسی تھی کہ دن کے وقت بھی جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، ہر سو ویرانہ ہوتا تھا اور وحشت برستی تھی۔ صرف بزرگان سلف کے مقابر کے گرد قدرے چہل پہل رہتی تھی، اچھے بھلے لوگ یہاں جاتے ہوئے کتراتے تھے۔ راقم الحروف نے یہاں ایسے ایسے کھڈ اور غار دیکھے جہاں جانوروں کے علاوہ انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیوں کے ٹکڑے ان کے طرفین میں جھانکتے رہتے تھے، جو سیر کرنے والوں کے لیے وحشت، دہشت اور ہیبت کے لیے کافی تھیں۔ قلعہ کے اطراف و جوانب میں چونکہ بازار نہ تھے، لہذا ہر جگہ سے تقریباً اوپر چڑھنے کے لیے کچے راستے لوگوں کی آمد و رفت نے بنا دیے تھے۔ میونسپل کمیٹی خاک اور خس و خاشاک کے علاوہ مردہ جانور بھی یہیں ڈلواتی تھی، جو چیلوں اور کوآہے کے مستقل تعام و قیام کا سبب بنتے تھے۔ اب تو حالت ہی اور ہے، بلدیہ ملتان نے اسے گال و گلزار بنا دیا، رہی صحیح قصر ملتان کے ترقیاتی ادارے نے پوری کر دی۔ قلعہ کو مختلف سطحوں میں تقسیم کر کے ان میں کشادہ گلشن، قطات، پارک اور درخت، گھاس کے میدان، پھولدار خوشنما تختے، بچوں کی تفریح کے سامان، نہریں، حوض، فوارے استادہ کر کے اس کو پربہار بنا دیا۔ اسٹیڈیم اور کھیل کے میدانوں نے اور بھی رونقیں دوبالا کر دے۔ یہ سب کچھ اب قاسم باغ کہلاتا ہے۔ اتنے سارے کام ایک دن میں نہیں ہوئے، یہ ایک مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئے۔ پہلے اس کام کی ابتدا 1949 میں ہوئی، جبکہ ناظم بلدیہ ملتان نے ہمت کر کے اس طرف دلچسپی سے توجہ دی اور ایک پتھر یادگار کے طور پر دروازے پر لگا دیا تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ بسم اللہ فاتح سندھ و ملتان غازی محمد بن قاسم کی یادگار۔ نومبر 1949 میں سلسلہ تعمیر شروع ہوا۔ محمد فاروق، ناظم بلدیہ ملتان۔ تو قاسم باغ در حقیقت خوبصورت باغ ہونے کے علاوہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، جو 17 سالہ مجاہد اعظم محمد بن قاسم کی یاد میں رکھا گیا تھا۔ جب آپ لوہاری دروازے کی جانب سے قلعہ پر چڑھیں تو ایک خوبصورت بڑا محرابی داخلی دروازے آتا ہے، جس کے عقب میں انگریزوں کے زمانے کی پانی کی ٹینکی ہے۔ جب دروازے اور قلعہ پر سڑکیں اور قطات مکمل ہو گئیں تو محمد فاروق ناظم بلدیہ تبدیل ہو چکے تھے، نئے ناظم آ چکے تھے۔ انہوں نے سوچا چونکہ یہ تمام کام ان کے عہد زرعی میں اختتام پذیر ہوا تو ان کا نام بھی منظر عام پر آنا چاہیے۔ انہوں نے فوراً ایک پتھر کی تختی پر یہ لکھوا کر لگوا دیا: باب القاسم حضا کی تعمیر دسمبر 1953 میں تکمیل کو پہنچی۔ سید منظور حسین، ناظم بلدیہ ملتان۔ اگلے وقتوں کی بات ہے کہ قلعہ کی باقاعدہ فصیل ہوتی تھی، اب تو کب کی منہدم ہو چکی۔ اوہاری دروازے سے حسین آگاہی پر سڑک کے کنارے 1947 میں ہم نے کہیں کہیں اس کے ٹکڑے دیکھے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہم قلعہ کی پختگی، استواری اور بلندی کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ سچی بات ہے صاحب، کسی زمانے میں تو یہ بہت لاجواب مضبوط قلعہ ہوگا۔ اب بھی اگر فیتا لے کر قلعہ کے گردا گرنا ہے تو 2-2.5 کلومیٹر تو بن ہی جائے گا۔ قلعہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ 2500 سال پہلے سکندر اعظم نے بھی سین قلعہ پر اپنے دل کے پھولے پھوڑے تھے، پھر سینکڑوں اور اس قلعہ کی سیڑھیوں میں اترتی چڑھتے رہے۔ یہ پرانی ہیں، مگر آج سے 250 سال قبل تک بھی چھوٹیے قلعے اپنی حسن و یگانگت میں یکتا تھا۔ اس کے چہار اطراف ایسی فریاں تھی جس پر کئی گیوڑ سوار برابر دوڑ سکتے تھے، اور اس قلعہ پر 26 برج تھے۔ قلعہ سے دشمن پر گولہ باری تیر اندازی کرنے کے لیے 3 دم میں تھے۔
एक दमा तो आज भी सही ओ सालम खड़े है। शायद ये इस वजह से बच गया हो कि तारीख में सब हमला आवरों ने मशरकी और जनूबी समतों से कला पर हमले किए और ये दमदमा मुनहदिम ना हो सका, जबकि बाकी दो दमदमों पर हर दो के हमला आवरों ने निहायत शदोमत से फौजी अलगारें की। हम आपको बता दें कि उनमें से एक ऐसा ही दमदमा हुसैन आगाही की जानिब था, जहां अब मिसाली मदरसा है। दमदमा इसकी छत पर था और दूसरा दमदमा पर हलत के मंदिर और हजरत बहा अल-दीन जिक्रिया की खानका के मशरकी जानिब था, जिसके कुछ आसार अभी तक मौजूद हैं। अंग्रेज मुअर्रिखीन की राय में ऐसा जबरदस्त मुस्तहकम कला तमाम बए-सगीर पाक व हिंद में ना था। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह कला बहुत ऊंचे पुश्ता पर तामीर किया गया था, जहां से अर्द गिर्द मीलों दूर का इलाका नजर आता था। इस कला के दो हिसार थे, जबकि आम तौर पर एक ही हिसार काफी समझा जाता था। इस कला पर एक हिसार जो अंदरूनी था पुख्ता ईंटों से बना हुआ था और 34 से 40 फुट तक बैरूनी हिसार से ऊंचा था। बैरूनी हिसार मिट्टी का एक जबरदस्त पुश्ता था जे धूर कोट कहते थे। ये पुश्ता तकरीबन 150 फुट चौड़ा था और इस तरह ये पुश्ता अंदरूनी पुख्ता पुश्ते को गोलाबारी से महफूज रखने के काम आता था। कला की हिफाजत के लिए देवड़ कोट पुश्ते के बराबर एक गहरी खंदक भी थी, जो कला को चारों तरफ से अपनी लपेट में लेती थी। ये समझ ले कि कला को चारों तरफ की मौजूदा सर्कुलर रोड ही इस जमाने में खंदक थी, जिसमें हर वक्त पानी भरा रहता था। ये पानी दरियाए रावी से एक नहर के जरिए लाया जाता था। इस कला का अंदरूनी मुहित 6600 फुट था। कला की अंदरूनी फसील पर 46 बुर्ज थे, जिस पर हर वक्त चाको चौबंद फौजी खड़े पहरा देते थे। उनके अलावा 4 दाखिली दरवाजे थे। पहला देहा दरवाजा जो मगरिबी समत था, जवाब बाब अल कासिम कहलाता है। दूसरा खिजरा दरवाजा था जो शुमाल की जानिब था और हुजूरी बाग से, यानी वो रास्ता जूनो नंबर चुंगी से आता है, वो सीधा खिजरा दरवाजे में आता था। तैसुर उसकी सकी दरबार है जो मशरिक की जानिब था, जो कला सिक्का की जानिब से आता था, जहां उस वक्त सीतल माड़ी का मौजा है। और चौथा दरवाजा रो दरवाजा कहलाता था, जो मौजूदा हुसैन आगाही की तरफ खिलता था। यहां गालिबन रीढ़ या ढलान थी, जिसकी वजह से ये रो दरवाजा मौजूद था। चारों दरवाजे पर बड़े बुर्ज थे। दराजों के अंदर डोड़ियां थीं, जिनमें मुलाजिमीन रहाइश रखते थे। कुछ मुअर्रिखीन उन दरवाजों का इस तरह हाल बयान करते हैं। कहते हैं कि हुसैन आगाही की जानिब कला में दाखिल होने के लिए रेडियो रीरी दरवाजा से अंदरून शहर का मुस्तकिफ रास्ता था, जिसके जरिया कला और शहर में अवाम व खवास व बहिफाजत आ जा सकते थे। सकी दरवाजा कला से हट कर था, जो जगह अब दौलत दरवाजा कहलाती है। कला यहां तक आबाद था। यहां एक रास्ता कला सिक्का को जाता था, जो दरियाए ब्यास के किनारे आबाद था। हमारी तहकीक के मुताबिक वाकई दरियाए ब्यास मुल्तान से चंद मील पर बहता था। मौजा सीतल माड़ी के करीब जो पुरानी सड़क मुल्तान से दुनियापुर को जाती है, इस पर कला सिक्का आबाद था। अब दरियाए ब्यास की गुजरगाह जहानिया से भी परली तरफ हो गई है। खिजरा दरवाजा खानका बहा अल-दीन जिक्रिया के शुमाली जानिब था। मोहम्मद यूसुफ कुरैशी वाली मुल्तान से जब लंगाहों ने धोखा देकर हुकूमत मुल्तान छीन ली, तो वो इस दरवाजे से निकलकर फरार हुए थे। मगरिबी समत वो दरवाजा जो दमदमा और खानका हजरत शाहरुख आलम के दरमियान था, इसे देहा दरवाजा या देवल दरवाजा कहते थे। सिकंदर आजम इसी दरवाजे के शुमाली जानिब से सीढ़ी लगाकर कला में कूदे थे, जिसे अब बाब अल कासिम कहते हैं। ए भाई, इस कला का तो एक एक चप्पा अपने दामन ने यादों के खजाइन लिए हुए पड़ा है। आज हम आपको कला कोहना की सैर कराते हैं। बाबल कासिम से अंदर दाखिल हों तो बाईं जानिब खानका हजरत कुतुबुल अख्ताब शाह रुकन आलम नजर आती है, जो मुल्तान की ना की निशानी है। इसको शहनशाह गियास अल-दीन दीन तुगलक ने अपने वास्ते तामीर कराया था। फिर 1327 अशारिया में इसके बेटे मोहम्मद तुगलक ने हजरत शाह रुकन आलम की नजर कर दिया, जहां अब महू ख्वाब है। थोड़ी दूर चलकर जहां अब कैफे रेस्तोरां बना हुआ है, यहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने 93 में एक जामे मस्जिद की बुनियाद रखी, जो उसके बाद उसके गवर्नर दाऊद बन नसर ने 96 में मुकम्मल कराई।
करामती फ़िरका के लीड रुजलिम बिन शिबा ने जब मुल्तान की हुकूमत संभाली तो 3756 में इसने मस्जिद को शहीद करा दिया। महमूद गजनवी ने जब मुल्तान का दौरा किया और करामतियों को खत्म कर दिया तो 3956 में फिर इस मस्जिद को नए सिरे से तामीर और आबाद किया। 1818 में सिखों ने मुल्तान पर इक़्तिदार हासिल कर लिया। 1848 में जब अंग्रेजों ने कला पर गोला बारी की तो ये मस्जिद भग से उड़ गई, चूंकि अंदर गोला बारूद ज़ख़्र है था। इसके बाद किसी ने इस पर तवज्जो ना दी। अब तो बुनियादों का भी इल्म नहीं। जहां कला पर एक मीनार खड़ी और मुल्तानियों की गैरत को लाकार रही है, ये जगह अंग्रेजों की फतह मुल्तान की यादगार है। यहाँ कभी हिंदुओं का अजीम मंदिर था जिसे करामतियों ने जमीन बोस कर दिया था और उस पर अपनी मस्जिद तामीर कराई थी, जिसका रुख खिजाई मक्का मुअज़्ज़मा के बैत अल मक़दस की समत था। कला के मशरकी किनारे पर हिलादाल मंदिर के हमदीवार हजरत गौस अल-आलमीन बहा अल-दीन ज़िक्रिया की खानकाह है। खानकाह की असल तामीर तो 7वीं सदी हिजरी में हुई, मगर 1848 की फरंगियों की गोलाबारी से मुनहदम हो गई थी, जिसके बाद वो दोबारा तामीर की गई। 1818 तक कला के ऊपर महल्लात व इमारात की तरतीब इस तरह थी कि हजरत गौस अल-आलमीन, हजरत बहा शिमाउद्दीन और हजरत कुतुब अल-अख्ताब शाह रुकन आलम के मकबरों के दरमियान महल्ला शेखाना था, जिसमें कुरैशी खानदान के अहल सरवत के मकानात व इमारात थी। ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जिसमें बहा ये मदरसा शामिल था, गौस अल-आलमीन के मकबरे जुनूब में वाक़े थी, जो एक मुकम्मल कैंपस की शक्ल में था, जिसमें दरसगाहों की इमारत, दारुल अकामा, मेहमान खाना, आलीशान जामे मस्जिद मौजूद थी। आजकल उन सब की जगह मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवाम के लिए एक वसी व अरियक पार्क बना दिया है, जिसमें दाखिले के लिए अवाम को टिकट लेना पड़ती है। कला की जुनूबी समत यानी जहां मिसाली मदरसा और स्टेट बनिक हुसैन आगाही मौजूद है, इसके ऊपर टीले में अल्लामा काजी कुतुब अल-दीन काशाई के शानदार मज़ार के अलावा मदरसा नासिरिया था, जो मुल्तान के एक हुक्मरान सुल्तान नासिर अल-दीन कबाचा ने तामीर कराया था। 1848 में अंग्रेजों ने हमला किया तो तमाम इमारत तबाह हो गए। 1952 मुल्तान के कला कोहना पर जब नुमाइश लगी तो यहाँ मौत का कुनवा इस्तादा किया गया और नाच गाने थिएटर के तंबू नस्ब किए गए। आजकल यहाँ स्टेडियम तामीर हो गया है, जहाँ लाखों रुपया खर्च किया गया। यहाँ एक टीला पर हजरत काशानी और हजरत मिनहाज अल-दीन सिराज की कब्रें अब भी मौजूद हैं। अभी हाल ही में वहाँ एक तहरीर आवेज़ा की गई है, जिससे इन उमूर की निशानदेही कर दी गई है। वहाँ ये भी लिखा गया है कि यहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने एक मस्जिद 94 हिजरी में तामीर की थी। ये बिल्कुल गलत है। उसने यहाँ मस्जिद नहीं बनाई थी, बल्कि यहाँ मस्जिद जरूर थी, जो कि मस्जिद नासिरिया यूनिवर्सिटी के अहाता में थी। ये कुतुब अल-दीन कबाचा ने बनाई थी, जिसमें आकर हजरत बहा अल-दीन ज़िक्रिया नमाज फजर पढ़ा करते थे। इन तमाम इमारात के अज़कार तवारीख में मिल जाते हैं। ये दिलकश इमारत खास फन व सकाफत की आईनादार थीं। ऐसी मुसत्ता इमारत ने मुसलमान मुहंदिसों व ममारों की फन्नी तख्लीकात को जला बख्शी थी, जिनमें आड़े सुतून, बुलंद मेहराबें और मदूर गुंबद नजर आते थे। ये तरक्की ईरानी सल्जूकी असरात के मातहत, जो वक्तन फवक्तन मुल्क के अंदर दाखिल होती रही थीं, जारी रही। मकामी कारीगरों ने ईरान के मुमारी अंदाज अपनाए और तमीरी उसलूब अज किस्म हश्त पहलू बुनियादें, मदूर मोहरा हैं, पुश्त पनाही सुतून बनाने में कमाल दिखाया था। ये सब कला कोहना की मिट्टी में दिन हो गई और फिर मिट्टी के अंबारों के। ये बात तो अमर मुस्लिमा है कि इस कला कोहना की मिट्टी के नीचे सैकड़ों हजारों साल की तरबनिकरोहे, हजारों साल की तहजीब व सकाफत के राज दफन हैं, जिनकी हकीकत की तलाश में 125 साल कबल एक मुहक्किक अंग्रेज अफसर जनरल किंघम, जो लॉर्ड भी था, कला कोहना पर खुदाई कराई थी। ये खुदाई हजरत बहा अल-दीन के मकबरे के मगरिब में हुई थी। जनरल लिंघम 40 फुट नीचे तक गया और वहां से जो अशिया बरामद हुई, इसकी तहकीक के बमूजिब इसने इस मकाम को 2500 साल कबल के जमाने की जार देकर अपनी मालूमात को फखरिया अंदाज में पेश किया। इस जमाने में इसकी तहकीक परदाद व तहसीन पेश की गई, मगर मुल्तान के इब्न हनीफ साहिब तो इसे भी 60 फुट गहराई से वो दर मकनून निकाल लाए और बबांग दोहुल कहा ये नाम कीना
समझी थी कि अगर वो मजीद खुदाई कराता तो 40 फुट गहराई को हतमी ना करार देता। इब्न हनीफ का फहम रस्सा ज़हन और आंखों की गहराइयां इस हकीकत की गम्माज हैं कि उन्होंने इस दश्त कारजार में बहुत सफर किया है। बात यूं शुरू होती है कि मुल्तान कला पर पाकिस्तान बनने के बाद एक स्टेडियम तामीर हुआ जिसमें कुछ अरसा के बाद दरारें आ गईं, तो समझदारों ने बताया कि आइंदा इसके सुतून ज्यादा गहराई तक बनाए जाएं ताकि पायदार रहें। खूब बात है पायदारी भी। इस दुनिया में तो कोई चीज भी पायदार नहीं, मगर दिल बहलाने को यह ख्याल अच्छा है समझकर 1987 में 212 बूर सुराख किए गए जिनमें स्टेडियम के सुतून कायम करने थे। ये बूर 84 से 94 फुट तक गहरे थे। हम आपको इस अमर का अंदाजा लगाने के लिए एक बात बताते हैं जो बहुत जरूरी है, गौर से सुन लीजिए। अगर आप हुसैन आगाही के चौक में खड़े हो जाएं और इस मकाम को 0 पॉइंट तसव्वुर कर लें तो वहां से कला की बुलंदी 50-55 फुट बनती है। इसका मतलब यह हुआ कि 0 पॉइंट से नीचे भी 34-35 फुट गहरे सुराख किए गए। जनाब इब्न हनीफ साहिब चश्मदीद गवाह हैं, तमाम आसार अलजादीद के मुतालिक शरा ओ बस्त के साथ बताते हैं और रोज नामचा भी लिखते हैं। इन सतरजादे बा के बेसहरा नविश्ते अंद, यारान रफ्ते अज कलम पा नविश्ते अंद। तो साहिब, इन सुराखों से जो चीजें जमीन की गहराइयों से दस्तयाब हुई उनकी फहरिस्त इस तरह है। धात के सके, मन के, हड्डी की चूड़ियां और टुकड़े, पत्थरों की मुख्तलिफ अशिया बशमूल चुकी की पाट हमटी के खिलौने, पकी मिट्टी के ज़रूफ, रोगनी बर्तन के टुकड़े, मुख्तलिफ शक्ल व हजम की ईंटें, मिट्टी के चिराग, तंबाकू की चिलम, अलामत ज़दा बर्तन, धात के बर्तन, घूंगे, जली हुई लकड़ी के टुकड़े, कोयले, राख वगैरह। चिल्लू वो तो 2 साल पुरानी बात है। चंद माह पेशतर रोशनी के खंभों के लिए फिर बूर करने पड़े। उनकी तादाद 16 थी। इब्न हनीफ की मैयत में हमने बुशम खुद देखा और बहुत कुछ प्ले बांध कर वापस आ गए। इनमें कुछ बूर 104 फुट तक करने पड़े, जहां से मुख्तलिफ अदवार की अशियाएं सिर्फ निकलती रहीं, जिनके मिल जाने से हमें ये वसूख के साथ कहना पड़ता है कि मुल्तान का कला कोहना हड़प्पा का हम असर बल्कि इससे भी कदीम है। इसकी कदामत के 5-6 हजार साल के तो शवाहिद दस्तयाब हो चुके हैं। एक दिन कला कोहना पर हम दोनों की ये बहस जारी थी कि 28 मन वजनी ब्लर 106 फुट की गहराई से कोई 4 किलो वजनी जली हुई लकड़ी लेकर बरामद हुआ। इसके साथ मिट्टी लिथड़ी हुई थी, रेत नहीं थी, जिसको देखकर मुझे यकलख्त अंदाजा हो गया कि मुल्तान की सरजमीन 10,000 साल कदीम होने के सबूत मेरे सामने मौजूद हैं। इस तरह ये बात आपकी समझ में आ जाएगी कि 0 पॉइंट से 50 फुट की गहराई में पानी, रेत, मिट्टी, पत्थर वगैरह न निकलने और उसकी बजाय जली हुई लकड़ी निकलने का मतलब यह हुआ कि इस गहराई में भी जंगल मौजूद थे जो सतह जमीन पर थे। आफात अर्जी व समावी से इसमें आग लग गई, जंगल जलकर खत्म हो गया। दरिया के सैलाब से मिट्टी की नहीं जमती रहे, फिर आबादियां होती रहें, जमीन ऊंची होती रही। एक मुद्दत गुजर गई। ये 50 फुट मिट्टी किस कदर अरसा में जिमी जो 5000 साल से कबल यकीनन हजारों साल का अमल और रद्द अमल था।